بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج اکیڈمیا میں خوش آمدید۔ میرا نام خالد حسین ہے اور ہسٹری آف پاکستان میں آج ہم دوسرا لیکچر جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم آرینز ایرا جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آریاؤں کا اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد۔ یہ جو ہے یہ 1500 تا 700 قبل مسیح برصغیر کی قدیم تاریخ کا سب سے اہم واقعہ اس خطے میں آریاؤں کی آمد ہے۔ آریا سے مراد اعلیٰ نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں۔ جب یہ قوم وسط ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئی تو یہاں مقامی آبادی دراوڑ نسل آباد تھی جو آریاؤں کے مقابلہ میں کمزور تھی۔ آریاؤں نے انہیں مار بھگایا اور خود قابض ہو گئے۔ اصل وطن کی بات کی جائے تو آریا جب ہندوستان میں آئے تو ان کی حیثیت پناہ گزین کی تھی۔ مضبوط جسامت اور جنگجو فطرت نے جلد ہی ان کو شمالی ہندوستان کا فاتح بنا دیا۔ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ شمال مغربی پہاڑی دروں سے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آریا مختلف ادوار میں گروہوں کی شکل میں ہندوستان میں آتے رہے۔ آریا وسط ایشیا میں خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہ نئی چراگاہوں اور سرسبز میدانوں کی تلاش میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ خاندانی جھگڑوں نے انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آبادی میں اضافہ بھی ملک چھوڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصہ تک وادی سندھ میں رہائش پذیر رہے، اس کے بعد گنگا و جمنا کے سرسبز میدانوں میں پھیل گئے۔ یوں پورا شمالی ہندوستان آریاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ آریاؤں کا معاشرتی نظام۔ آریائی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ ان کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ ان کی اکثریت خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ مذہبی رسوم میں پیش ہوتے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں میں چند خاندان رہتے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کا گھر دوسروں سے بڑا ہوتا تھا۔ یہ لوگ شہری تمدن سے واقف نہیں تھے، لیکن ہندوستان یعنی کہ جنوبی ایشیا میں آ کر انہوں نے مقامی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہ مکانات بنا کر رہنے لگے۔ آریا ہندوستان میں ایک الگ مذہب اور ثقافت لے کر آئے۔ آریا رقص اور موسیقی کے دلدادہ تھے۔ وہ نیزہ بازی میں بھی ماہر تھے۔ آریاؤں میں باہمی تعاون اور اتحاد دیکھنے کے قابل تھا۔ اعتماد اس قدر تھا کہ دکانوں اور مکانوں کو تالے نہیں لگاتے تھے۔ مذہبی رسومات میں عورت اور مرد برابر کے شریک ہوا کرتے تھے۔ آریاؤں کی آمد سے مقامی تہذیب پر کیا اثرات ہوئے؟ آریاؤں کی آمد سے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی۔ آریاؤں کا مذہب، فلسفہ اور تہذیب مقامی آبادی سے مختلف تھی۔ ان میں پیشوں کی بنیاد پر ذاتوں کی شکل میں معاشرتی تقسیم تھی۔ رفتہ رفتہ ہر پیشہ ور موروثی بن گیا۔ اس کے بعد کوئی شخص پیشہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ مختلف ذاتوں کے لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ آریاؤں کی مقامی آبادی سے اکثر لڑائی رہتی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شہری تمدن کو تباہ کر دیا۔ مقامی آبادی آریاؤں کی غلام بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد ہے جی ان کی معاشرتی سرگرمیاں۔ آریاؤں نے زراعت کو فروغ دیا۔ گندم اور کپاس کی کاشت کی جاتی تھی۔
वो चावल की काश्त से नावाकिफ थे। मवेशी पालने का आम रिवाज था। वो गाय, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। सनत और तिजारत खासी तरक्की पर थी। आर्या बैल गाड़ियां, हथियार, किश्तियां और रथें बनाते थे। वो सोने और चांदी के जेवरात भी बनाते थे। हथियारों में कमान, तीर, कुल्हाड़ी और तलवारें तैयार करते थे जो लोहे की बनी होती थीं। औरतें कपड़े और चटाइयां घरों में तैयार करती थीं। चमड़े की रंगाई का काम भी किया जाता था। फालतू अशिया दूसरे इलाकों को बरामद की जाती थीं। आर्या शुरू में चीजों के बदले चीजों का लेन देन करते थे। बाद अज़ां मवेशियों को बतौर करेंसी इस्तेमाल करने लगे। फिर तांबे के सिक्कों ने जगह ले ली। इस वक्त बैंकों का तस्वर नहीं था, इसलिए जमाशुदा रकूम को जेरे जमीन दबा दिया जाता था। शहरों में कारीगरों की बदौलत दस्तकारियों ने खूब तरक्की की। लकड़ी, धात, पत्थर, चमड़े और हाथी दांत के हुनरमंद अपने फन में माहिर थे। वो सूती और ऊनी कपड़ा भी बुन लेते थे। विरासत में जमीन सिर्फ बेटियों को मिलती थी। मजहबी अकायद। आर्या कुदरती माहौल में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करते थे। अपने इब्तदाई दौर में आर्याओं का ख्याल था कि मुख्तलिफ देवियाँ और देवता इनकी ज़िंदगी के मामलात तय करते थे। इसी यकीन की वजह से वो देवी और देवता को खुश रखने के लिए नजराने पेश करते थे। वो जादू टोने पर यकीन रखते थे। मुर्दों को जला दिया करते थे। कुर्बानी देने का रिवाज आम था। मशहूर देवताओं के नाम सूर्या, अग्नि और इंद्र थे और मजहबी किताब ऋग्वेद थी। इनके अकायद वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत की सूरत में सामने आए। अब हम हिंदू मत के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू मत एक कदीम मजहब है जिसकी बुनियाद तजर्बात और समाजी रिवायात पर है। यही वजह है कि ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान का अच्छा और बुरा अमल ज़ाय नहीं होता। इसको अच्छे और बुरे अमल के मुताबिक सज़ा मिल जाती है। इंसान मौत के बाद दोबारा अच्छी या बुरी शक्ल में पैदा होता है, जिसका इन्हिसार इंसान के अच्छे या बुरे अमाल पर है। उसके बाद जात पात की तकसीम। आर्यों की आमद के बाद हिंदू मुआशरा 4 जातों में तकसीम हो गया। इनमें पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। ये 4 जातें थीं। ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण मजहबी रसूम का काम सर अंजाम देते थे। तालीम पर भी इनकी उजारादरी थी। मजहबी पेशवा और पंडित इसी जात से ताल्लुक रखते थे। खश्तरियों का काम मुल्क की हिफाजत करना था। वैश्य काश्तकार और ताजर थे। शूद्र सबसे छोटी जात थी जिससे अदना काम लिया जाता था। शूद्र को अछूत समझा जाता था और इनको ऊंची जातों से दूर रहने पर मजबूर किया जाता था। जात के लोगों का ख्याल था, ऊंची जात के लोगों का ख्याल था कि शूद्र को छूने बल्कि इसका साया पड़ने से भी वो नापाक हो जाते हैं। आप यहाँ पे ये तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पे खश्तरी और ब्राह्मण और इसके नीचे शूद्र और वैश्य। इसके बाद है जी बुद्ध मत मजहब। हिंदू मत में जात पात की तकसीम की वजह से बहुत से मुआशरती मसाइल पैदा हो गए। एक आम आदमी की जिंदगी अजाब बन गई। लोग जात पात के निज़ाम से निजात हासिल करना चाहते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में एक
इन हालात में हिंदुस्तान में एक नए मजहब बुद्ध मत ने जन्म लिया। बुद्ध मत मजहब जो है इसका बानी गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में कपिल वस्तु में पैदा हुआ। इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। जब वो जवान हुआ तो इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को गमज़दा देखा। इसने ज़ात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद किया। इसके जहन में इस निज़ाम को बदलने की सोच पैदा हुई। इसने 29 साल की उम्र में शाही महल को छोड़ दिया और गया के जंगलों में चला गया। उसने बड़ी रियाजत की, लेकिन उसे सुकून न मिल सका। आखिर एक रात उसे एक दरख्त के नीचे ज्ञान यानी कि इल्म मार्फत हासिल हुआ। गौतम बुद्ध ने हिंदू मुआशरे में ज़ात पात के तस्वर को ख़त्म करने और मसावात का दर्स दिया। उसने दर्ज झैल 8 असूल बयान किए, जिनमें से वो कहता है कि सादा ज़िंदगी बसर की जाए, शराब, जुआ और झूठ से बचा जाए, ब्राह्मणों की उजारादरी को ख़त्म किया जाए, किसी को अछूत ना समझा जाए, इंसानियत को एहतराम दिया जाए, कत्लो गारिद ना की जाए, ज़ात पात को ख़त्म किया जाए, तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और नीची ज़ात वाले लोगों पर गहरा असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया, जो भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। उसके बाद है जी जैन मत। महावीर इस मजहब का बानी था। वो पटना यानी कि भारत के करीब एक कस्बे वैशाली में 599 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो मजहब पर ब्राह्मणों की इजारादारी से नाखुश था। उसने ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़ी और मजहब का प्रचार करना शुरू कर दिया। महावीर ने सैकड़ों राहबों को अपना पैरोकार बना लिया। इस मजहब के मुताबिक निजात का रास्ता सिर्फ मुकम्मल आसना यानी किसी जानदार को तकलीफ ना देने के जरिए ही मुमकिन है। महावीर ने लोगों को समझाया कि किसी जानदार की जान ना लें, सच बोलें, चोरी ना करें और जायदाद ना बनाएं। इस मजहब के पैरोकार गोश्त नहीं खाते थे। इस मजहब में रूहानी ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया गया। वो जानवरों की कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते थे। महावीर का ख्याल था कि लोग ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही मुतमईन हो सकते हैं और निजात हासिल कर सकते हैं। जिन मत के पैरोकार हिंदुस्तान के अलावा मशरकी अफ्रीका के ममालिक में मौजूद हैं। अब इसके बाद जैन मत और बुद्ध मत का हिंदू मत से इख्तलाफ। हिंदू मत अपनी तालीमात की वजह से बुद्ध मत और जैन मत से कतई मुख्तलिफ मज़हब है। इसमें क्या इख्तलाफ है? जैन मत और बुद्ध मत दोनों मज़ाहिब हिंदू मत की किताबों को तस्लीम नहीं करते। दोनों मज़ाहिब ज़ात पात की तकसीम के सख्त खिलाफ हैं, जबकि हिंदुस्तान ज़ात पात की तकसीम पर यकीन रखता है। नंबर 2, बुद्ध मत और जैन मत में हिंदू मत के बरक्स आसना यानी अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के असूल पर बहुत जोर दिया गया। नंबर 3, जैन मत और बुद्ध मत में तबलीग की इजाज़त है, जबकि हिंदू मत मज़हब में तबलीग के ज़रिए हिंदू नहीं बनाया जा सकता। जैन मत और बुद्ध मत में गुनाहों से बचने की तलकीन की गई। हिंदू मत के मुताबिक स्नान यानी गुस्ल करने से गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 5 पे है, हिंदू मत में दुनियावी ज़िंदगी गुजारने पर जोर दिया जाता है, जबकि जैन मत और बुद्ध मत ने दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया और रूहानियत की तरफ माइल हैं। गंधारा तहजीब का इर्तिका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तहजीब के मराकज़ कश्मीर से लेकर टेक्सला के इलाकों तक फैले हुए हैं। टेक्सला गंधारा आर्ट का मरकज़ था। यहाँ के रहने वाले लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे। वो मुजस्मे बनाकर अपने मजहबी रहनुमाओं को
पूजते थे। वादी सवात में गौतम बुद्ध के कद आवर मुजस्मे, स्टोपे और गंधारा तहजीब के आसार कदम कदम पर आपका दामन थाम लेते हैं। ये आसार दुनिया भर में बुद्ध मत के ज़ायरीन के लिए इंतहाई मुक़द्दस और मुतबर्रक समझे जाते हैं। शंगरो स्टोपा वादी सवात में बरी कोट के करीब तैयार किया गया था। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसके असरात आज भी सवात में आसार कदीमा की शक्ल में जगह जगह फैले हुए हैं। ये आप तस्वीर में टेक्सला के खंडरात जो हैं इसको देख सकते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी। गंधारा आर्ट गौतम बुद्ध के मुख्तलिफ मुजस्मों और पत्थरों के नकूश का मजमुआ है। गोया संगे तराशी, मुजस्मा साजी, तस्वीर कुशी और मुख्तलिफ नकूश पर कुंदाकारी का जो फ़न वजूद में आया, इसे गंधारा आर्ट का नाम दिया गया। गंधारा ना सिर्फ फ़न का नाम है बल्कि ये एक मुकम्मल तहजीब का आईना-ए-दार है। शुरू में गंधारा आर्ट यूनानी फ़नून लतीफ़ा के ज़ेर असर था, लेकिन बाद में इसमें मकामी रंग गालिब आने लगा। यूनानी आर्ट को बुद्ध मत की तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए कोशिश की गई। गंधारा में दुनिया की कदीम तरीन टेक्सला यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, जहां इल्म हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से तुलबा आते थे। गंधारा आर्ट में गौतम बुद्ध की पैदाइश, फाका कशी और घर से रवानगी के मनाजिर बड़ी खूबसूरती से दिखाए गए हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो लाजमी पसंद आई होगी। तो छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो आज का लेक्चर यही था। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।